غنہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. اور ناظرین، آج گفتگو کریں گے کہ شاعری میں ایک دوسرے کی زمین پر تباہ آزمائی اور خیالات کے ٹکراؤ کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے شاعر جیم سین دھڑکن اور ان کے دو شعراء ساتھی. جی السلام علیکم. جنید میاں، آپ نے تو آتے ہی ہمارے زخموں پہ نمک پاشی شروع کر دی. ارے بھائی، یہ قبضے کے جراثیم تو اب 400 پھیل چکے ہیں. اور یقین مانیے کہ اگر بات شاعر کی زمین تک رہتی تو گوارا تھی. شاعر کی شاعری کی زمین پر جب قبضہ ہوتا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہے. بات تو آپ کی 16 آنے درست. اور اس سرقے چوری کے الزام کی زد سے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی محفوظ نہیں رہے. لیکن بات یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے شعراء نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بڑے شاعر یا ادیب پہ سرقے کا الزام عائد کیا. یہ بھی ریکارڈ درست. آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا؟ بھائی، کوئی ایک دفعہ ہمارے اپنے دوستوں نے بھی کئی دفعہ یہ واردات کی. اچھا. بھائی، ہم تو شاعر لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، حساس لوگ ہیں. ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. ہم تو موسم اچھا دیکھ کے بہل جانے والے لوگ. ارے دھڑکن میاں، آپ بولتے ہیں تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے. معاف کیجئے، اس کی وجہ ہماری گفتگو نہیں، آپ کی غربت ہے. اپنی گھڑی میں نیا سیل ڈلوائیے، وقت نہیں تھمے گا. نہیں، شمیم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے ہیں، چڑیاں چہچہانا بند کر دیتی ہیں. میں کہتا ہوں دکانیں بھی یہی بند کرتے ہیں، یہی ہڑتال کرواتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا دھڑکن صاحب، آپ نے موسم کی بات شروع کی تو کچھ عنایت ہی کر دیجئے. ابھی چند دن پہلے آسمان پر بادل دیکھ کے آمد ہوئی، وہ پیش کر رہا ہوں. ہو جائے گر کھل کے بارش، گر کھل کے بارش، ہو جائے گر کھل کے بارش، کیا کہنے؟ چلیں جو خوب ہنیریاں. ارے واہ، اچھا ہے. کہاں بارش کا ہنیریاں. واہ، مصرع ثانی ملاحظہ کیجئے. خوبصورت. تباہی. ہو جائے گر کھل کے بارش، چلیں جو خوب ہنیریاں، چیچو چیچ گنیریاں، دو تیریاں دو میریاں. ارے خوبصورت دھڑکن، تیرا متھا چوم لو، کیا خوبصورت تھاٹ ہے. اگر یہ گنڈیریاں چاروں میری ہو جاتی تو شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا. زخمی میاں، فروٹ کٹھا کر رہے ہو، ابا میاں کا ختم دلانا. موسم کا حال تو سنے جی ارشاد. ارے بھائی، موسم پہ کیا لکھتے جنید میاں. یہ پہلا شعر ہی ابھی لکھا تو لائٹ چلی گئی. پھر ذہن لائٹ کی طرف مڑ گیا. خوبصورت. وارے واہ. کیا آمد ہوئی. بل کا ایک دن معین ہے. خوبصورت. اچھا ہے. بل کا ایک دن معین ہے، بجلی کیوں رات بھر نہیں آتی. بل کا ایک دن معین ہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، ساتھ اگر جرمانہ دے دیں تو لیٹ بھی جمع ہو سکتا ہے. آپ کی اس بات پہ آپ کی طرف غور ہوا اور آمد ہوئی. واہ 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 واہ، آج تو شکر ہے دیکھا مجھے اس نے. دل تو میرا اداس ہے دھڑکن. دل تو میرا اداس ہے دھڑکن، کبا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے. ارے وارے واہ، دل جیت لیا. کوا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے. دل تو میرا اداس ہے دھڑکن، کوا کیوں کائیں کائیں کرتا ہے. تنخواہ لیٹ گر ہو گئی میری، پھر کیوں جرمانہ ساتھ پڑتا ہے. خوبصورت. اچھا ہے. خوبصورت. تباہی. دھڑکن صاحب، آپ زمین چوری ہونے کا رونا رو رہے ہیں اور خود دوسرے شاعروں کی زمین استعمال کر رہے ہیں. آج کل یہی ہو رہا ہے. جو جرم انسان خود کرے، اگر ساتھ اس کا واویلا بھی کرتا رہے
तो उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? सुहाने रूह बन जाती है शायर के लिए जमीन की चोरी, शेर की चोरी। बजा फरमा रहे हैं आप। भाई अभी पिछले दिनों मेरे ससुराल के गांव से चौधरी का फोन आया कि भाई आके बकरा ले जाओ। वाह, बाखुदा सदके का नहीं कहा था। हाँ, कुछ लोग मुंह से नहीं कहते, दिल में कह लेते हैं। नहीं, बस उन्होंने इतना जरूर कहा था कि भाई मेरी अम्मा बीमार है, बकरे को हाथ लगवा दिया और आके ले जाओ। होगा सदके का ही, उन्होंने कहना मुनासिब नहीं समझा होगा। देखो, उन्होंने अगर पर्दा डाला है तो बात को आप तो अफशाना करें। वाह वाह। तो हम सदके का बकरा लेके, मेरा मतलब है कि चौधरी साहब का बकरा लेके जब बस पे रवाना हुए तो मेरे पाँव के नीचे से बस निकल गई। ओहो, बहुत जोर से गिरे होंगे आप तो। भाई शमीम मियां, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी नज़म चोरी होने पे हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। भाई परांदे बेचने वाला हमारी नज़म पढ़कर परांदे बेच रहा था। परांदे पे भी नज्म लिखी है? भाई परांदे पे एक नहीं 2 लिखी है, और दोनों ही आपकी भावच के लिए। भाई एक तो वो है ना कि गुट चुम्मे गिटियानु, वो तो आपने बारहा सुनी होगी। वाह, इतना मशहूर कलाम अपने नाम लगा रहे हैं। ये शायरी की चोरी पे आपका वावेला बनता है। आप जी शायर मौसूफ तो शायद आप तक ना पहुंच पाए, मगर मुझे यकीन है कि हुमैरा अरशद लाजमन आपकी किसी महफिल में चित्रौल करेंगे। भाई चले उसे छोड़ दीजिए, हमारे वाले सुन लीजिए जो कम बखत परांदे बेचने वाला चोरी करके सुना रहा था। वाह। अर्ज क्या है? वेखो पीले लाल परांदे, वाह। पिंडो शहर दा फेरा पौंदे, बस च नान ते टिक्की खांदे, थक जांदे ओ पैसे कमांदे, शॉपिंग सेंटर कदे न जाना, सस्ते ले लो आंदे जांदे, पिंडो शहर दा फेरा पौंदे, वेखो पीले लाल परांदे, किराया ते मैं पूरा दिता, क्यों पयो मैनू थल्ले लांदे, वाह वेखो पीले लाल परांदे। वाह। शमीम मियां, आप ही करीब बैठे हैं, दाद दे दीजिए। उल्टे हाथ की कि सीधे हाथ की? बनती तो 2 तरफा है। लड़कन साहब, ये आप दोनों क्या साथ लिए फिरते हैं यार? बस जुनैद साहब, ये जख्मी मियां तो खास तौर पे हर महफिल में हमें कुछ यूं जलील करवाते हैं कि लब कुशाई पे जी चाहता है। अभी आमद हुई है इन्हीं के किरदार पे। मैं रज के इसे फेंटना चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। क्या बात, क्या बात। कभी तो चलो कुछ ये अपना सुनाए, जमानों से ये मोजजा चाहता हूं। इन्हें सादा पानी पिला दें बहुत है, मैं बिस्कुट और एक मग्गा चा चाहता हूं। और हासिले नज्म शेर है, जख्मी मियां की खिदमत में पेश कर रहा हूं। जो जख्मी था अब चल बसा है बिलाखिर, जो जख्मी था अब चल बसा है बिलाखिर, ये पैगाम सुनना जरा चाहता। बहुत महंगा है 3 रुपए वाला पैकेज, मैं पैकेज कोई सस्ता सा चाहता हूं। हाय हाय। कहा कल मुहज्जब से डाकू ने मुझको, हुजूर आपको लूटना चाहता हूं। हुजूर आपको लूटना चाहता हूं। अच्छा है। अरे वाह। आप क्या करतूत सुना रहे हैं? आप कह रहे हैं अच्छा है? नहीं जी, वो ये मौसूफ खुद नहीं कहते अच्छा है, ये मुंह से निकल जाता है। पागल हो चुके हैं। जी हाँ, और इस पागलपन की वजह भी सुनाई देते हैं। एक दफा मुशायरे में बैठे हुए थे, आदत यही है अच्छा है। अचानक इसी दरमियान घर से फोन आ गया बेटे का। अच्छा। उसने बताया कि अम्मा सीढ़ियां से गिर गई हैं। अच्छा। आगे से आवाज लगा दी अच्छा है। आवाज इतनी ऊंची लगाई कि फोन के जरिए भावज के कानों तक पहुंच गई। मेरा ख्याल है 10 मिनट पूरे नहीं हुए, 9वां मिनट था कि भाभी मुशायरे में पहुंच गई। अच्छा, खुद कलाम सुनाने के लिए नहीं, इनके साथ कलाम करने के लिए पहुंची। उल्टा लटा लिया मुशायरे के दरमियान। अच्छा। मौसूफ का पेट देख लीजिए, दरमियान से ऊंचे और दाएं बाएं से नीचे।
बावज हमारी पांव पे डंडा मारे तो ऐसे हो जाए, सर पे डंडा मारे तो ऐसे हो जाए। वहां मौजूद हाजरीन के बच्चे ऊपर चढ़ के सीसा खेलना शुरू हो गए। इस अच्छा है की वजह से काफी दफा बेइज्जत हो चुके। एक दफा गली में से जा रहे थे जख्मी मियां, बच्चे खेल रहे थे, कहीं से एक पत्थर आके इनकी पुरपड़ी पे लगाए। हाय, तो इन्होंने हस्बे आदत कहा है अच्छा है। उसके बाद आधा घंटा संसार हुए मौसूफ। हाय, बनता तो यहां भी है अच्छा है। नाजरीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद मियां, ये तो आपकी मोहब्बत है और हम भी अदब की मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं। यहां आ जाते हैं एक तो आपका दिल बहलाने के लिए और दूसरा अपने गुबार निकालने के लिए। अच्छा। दुख होता है भाई, यही लाहौर शहर है, यही पाकिस्तान है जहां पे शुआरा और अदीब ऐसे ऐसे नामवर हुए हैं, इतने इतने बड़े लोग हुए हैं कि पूरे बर्रे शरीर में उनका नाम हुआ है। सही, बिल्कुल। मसला ये है कि भाई कहां गया वो अदब? क्या उनके आगे शागिर्द ऐसे नहीं जो उनका नाम रोशन रखें? हैं, बिल्कुल हैं। मुझे तो यूं लगता है कि बाकायदा मंसूबाबंदी से इस खित्ते से अदब को खत्म किया गया है। भाई लाहौर का तो हुजूरी बाग ही नहीं था मान। आप जरा याद कीजिए माजी को, आप भी माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं। आप दोबारा नहीं आना चाहते हस्बे हाल में? नहीं, आप हैं तो बुजुर्ग, लेकिन आपकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप भी गहरी बसीरत के मालिक हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा शायर और कैसा कैसा अदीब अल्लाह ताला ने अनायत किया है। धड़कन साहब, कहाँ हजूरी बाग में मुशायरा पढ़ने वाले शायर और कहाँ जी हजूरी करने वाले शायर। कुछ देखिए, कुछ इनको मिक्स ना कीजिए। जो अदब के साथ मोहब्बत करने वाले हैं वो तो आज भी बेचारे सिर्फ दाद वसूल करके घरों को चले जाते हैं। अब धड़कन साहब दूर क्यों जाते हैं? हमारे शो में आप तीनों तशरीफ लाते हैं, मुझे आप तीनों में से कोई एक भी जेन्युइन शायर नहीं लगता। ऐसा तो ना कहिए, हम रो देंगे। आप फिर देख ले गौर से, फिर देख ले, कोई तो जन्म लगेगा आपको। फिर एक दफा देख ले। अब आप अकेले जख्मी मियां की चोरी का इल्जाम हम सब पे ना थोप दीजिए। देखिए, मुझे आप दोनों से तो नहीं, अलबत्ता मुझे आप थोड़े से आपने तो कभी चोरी नहीं की कलाम की, शेर की? ना, तौबा 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 तौबा। शेर कभी नहीं चोरी किया। अच्छा, हमसायों के दरख्त से अमरूद चोरी किए, मोहल्ले के बच्चों ने। अच्छा। ये शमीम मियां ऐसे नहीं। हाँ, सारी जिंदगी जूते उठाए उस्तादों के। अच्छा। बड़े बादब हैं। चंद मर्तबा पैसे इधर उधर किए। क्या कह रहे? भाई वालिद साहब के, वालिद साहब ने कहा भी बटुआ उधर से उठा के इधर ले आओ। अच्छा। बड़े आला पाए के शायर हैं शमीम मियां। ऐसे तो नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बातें सुनी। जी हाँ, माशाल्लाह गुफ्तगू होती रहती है कि कभी ना कभी तो जरूर हुकूमत नवाजेगी इनको। ये तो बस एक ये जो जख्मी मियां हैं इनकी वजह से आप हमें भी मशकूक निगाहों से देखते हैं। यानी पूरे जमाने में एक हम ही चोर आपको नजर आए हैं? नहीं, नजर नहीं आए, आप हैं। देखिए, बात ये है जुनैद मियां कि हम तो इनको अक्सर औकात ये समझाते रहते हैं कि भाई कोशिश करो, अल्लाह ताला खुद आपको भी अता कर देगा। बेशक। वैसे भी धड़कन साहब, मेरा ख्याल है नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। भाई नकल भी क्यों करनी है जुनैद मियां? जरा थोड़ा सा हालाते हाजरा पे निगाह दौड़ाते हुए जहन पे दबाव डालें तो अल्लाह ताला अता कर देता है। अभी आपके चैनल की तरफ आते हुए जब वैगन में कुबड़े होके खड़े थे, अच्छा, हर निगाह जो है वो कंडक्टर के खौफनाक चेहरे पे थी, तो वैगन से उतरते ही क्या आमद हुई पेश कर रहा हूं। दिल ते गया ए ठुक सजना, दिल ते गया ए ठुक सजना, वेख के तेरी लुक सजना, तेरे अगे सिर की चुकीए कमर च पै गई चुक सजना। अच्छा है।
हंस या खिंच के मुक्का मार, जो मुकनाई मुक सजना। वाह जी वाह। भाई हम यहाँ पे फालसे बेचने नहीं आए, तो हमारी भी तो सुन लीजिए। इरशाद जी, इरशाद। चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, वाह वाह चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, तेरी राह पे तकनिया, जेड़ी सवेरे हलीम पकाई सी और राती पे ही चखनिया। वाह वाह वाह। मत गिरा लगाओ हमारे मिसरे पे। जी इरशाद। चंद माइया तेरी राह पे तकनिया, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनिया। जी अब क्या कहते हैं? उम्र कैद। बनती है और सिर्फ मौसूफ की वजह से साथ हम भी खार हो जाते हैं। धड़कन मियां, अगर गिरा ना गुजरे तो अर्ज करूं, जी फरमाइए। आप भी फन्ने शायरी में कमजोर है, सिर्फ फन्ने अदाकारी से अपनी कमजोरी को दूर करते हैं। कुछ तो करता हूं ना। जुनैद मियां, भाई पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये दोनों मौसूफ घर से निकलते हुए कह रहे थे कि भाई सारे शहर की सड़कों की हालत देखो, क्यों चल पड़े हो हमें लेके। हमने कहा भाई इन टूटी फूटी कीचड़ से भरी हुई सड़कों से ही इंशाल्लाह कोई ना कोई आमद हो जाएगी, और हो गई। जरा समात फरमाइए। इरशाद। हुई थी पिछले हफ्ते 10 मिनट जो बूंदा बांदी सी, हुई थी पिछले हफ्ते 10 मिनट जो बूंदा बांदी सी, खड़े कीचड़ की सूरत बाकियात उसकी है यूं बाकी, मेरी सड़कों का पानी टस से मस होता नहीं धड़कन, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तबाही। लेकिन जुनैद साहब आखिरी मिसरा चोरी करके ही पूरा हुआ है। लो बताओ। कह तो वो ठीक ही रहा है। तो फिर सीधा कह दीजिए कि आज चाय नहीं पिलानी। इन्होंने चोरी नहीं किया, आखिरी मिसरा मुस्तार लिया है। बहुत अच्छे, हम करें तो चोरी, वो करे तो मुस्तार। बिल्कुल नहीं लाऊंगा तुम्हें अगले इतवार। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, मैं अपने माशरे से तेजी से गुम होती हुई रवायत का जिक्र करना चाहता हूँ, जिससे हमारे के थल्ले सोटी लगा के चिड़ियां पकड़ना। कम वेश वैसी। तो कुछ अर्सा पहले याद है यार, हमारा मतलब 15-20 साल पहले ये होता था कि जब भी सड़क के किनारे किसी मैदान में हजूम लगा होता था तो फौरन मुंह से ये निकलता था कि कोई मदारी का तमाशा हो रहा है। या जब बंदे इकट्ठे हुए थे, चलो भाग जाओ, यहाँ कोई मदारी का तमाशा हो रहा है। तो लगा भी होता था, लगा भी होता था। वो कहाँ चला गया मदारी का तमाशा? इतनी एंटरटेनमेंट के जराए वसी हो गए कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो बंदर, बकरी और वो रीछ का तमाशा उनको पता ही नहीं है। और मेरा ख्याल उनके पास शायद टीवी पे भी नहीं उन्होंने देखा होगा। आज की शहरों में बड़ी होने वाली जो नई नस्ल है उसको नहीं पता होगा। तुम्हें एक बात बताऊं, छोटे जो शहर या पिंड कह लो, कस्बे वगैरह है ना, वहां अभी भी ये लोग पाए जाते हैं, मगर बाकी जो बड़े शहर है आबादियों वाले, वहां पे ये गायब हो गए हुए। बल्कि अब अल्लाह माफ करे ये लोग फकीर की शक्ल इख्तियार। ये अच्छा, उनको भी ये गिला है। लाहौर शहर में मुश्किल से हमें इस मौजू को डिस्कस करने के लिए एक मदारी मिला है। अच्छा। ये न्यू फूड स्ट्रीट में नूर शाह नामी, वो 4 नस्लों से ये काम करता है और उसने बड़ा इस बात पे एहतजाज किया है कि हमें फकीर बना दिया है। अच्छा। हाँ, उससे जब बात हुई तो उसने कहा कि जी ये बाकायदा मदारी जो है, मदारी का मतलब ये है कि जानवरों का तमाशा दिखाने वाले, बंदर, रीछ, बकरी और कुत्ता। आमतौर पे ये 3-4 जानवर हैं जो पूरी दुनिया में जानवरों का तमाशा दिखाने वालों के हवाले से ये 3-4 जानवरों का तमाशा मशहूर है। खास तौर पे जो रीछ का तमाशा है वो पाकिस्तान के अलावा यूरोपीय ममालिक में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। जी जी, खास तौर पे ये जो है ना जी, सब कॉन्टिनेंट जिसको कह लो, वहां पे ये बांदर शांदर बकरी, बंदर, बकरी और कुत्ता, ये सब कॉन्टिनेंट का एक खास कल्चर है तमाशा दिखाने के हवाले से। और उस नूर शाह का कहना यह है, उसका कहना है कि ये बाकायदा हमारा एक कबीला है मदारियों का। वो ये कहता है कि ये फकीर कबीले की एक गोत है, एक सब कास्ट है फकीर कबीले की। और उसका कहना यह है कि ये राजस्थान, हिंदुस्तान से ये हमारे आबाओ अजदाद वहां से चले जो फिर बर्रे सगीर में पूरे फैल गए।
वाह वाह मदारी वड्डी या मेला, मेला पेड़ वड्डी या लेला, लेला अंब वड्डा या केला, केला जुनेद वड्डा या सेला। सेला सेला, और वो भी 22 साल। यार मदारी देखो तुम शनाख्ती कार्ड बनाने लग गए। जमूरा वाह वाह ए गुरु वड्डा के चेला, चेला तेरा कख ना रवे रोटी मदारी दी भी खा जाना ते बांदर दी भी। ओए चेला गुरु नालो वड्डा किस तरह हो गया? ऐसरा अब भाई इधर आके अपनी लड़ाई ना शुरू कर दो, उधर तशरीफ रखो, बैठो। जी वो पे खैर जनाब जी। ओए, यार ऊपर ऊपर बैठे, बैठो। ऊपर बैठे, कुर्सी पे बैठे। जनाब वो लोग की नहीं नहीं, आप कुर्सी पे बैठे यार। ऊपर जी? हाँ वाह जी वाह। लो जी उस्ताद जी, उत्ते सानू बिठा छड़िया बाऊ होरां ने, बड़ी मेहरबानी है इन्हां दी। जमूरा वाह वाह। इस भाईये नाल लड़ेगा? मैं पागल हां। सियाना जमूर है। ए जमूरे वाह वाह। इस भाईये दी जेब च की है? मुंह तो लगदा कीमे वाला ना नहीं होएगा। ए दस भाईया वड्डा होके की बनेगा? हैं इन्हें हाली होर वड्डा होना है। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। बहुत अच्छे। ये तुमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है या मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलवाए? अच्छा, मैं बता ये रहा था कि ये बाकायदा राजस्थान से निकल के इनके आबाओ अजदाद फिर पूरे बरे सगीर में फैल गए, और ये खाना बदोशों की तरह किसी एक जगह टिक के काम नहीं करते। जी। और इनका जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सबसे जानवर है वो आज तक बंदर ही है। और आमतौर पे जो पाकिस्तान के मदारी हैं वो बंदर हासिल करने के लिए इस्लामाबाद, मारगला या एबटाबाद का रुख करते हैं। हाँ जी, उनको ट्रेंड करने के लिए ये रावी दरिया के परले पासे शदरे के नुक्कर पे बड़े बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली आमतौर पे वो बंदर 3, 4, 5 हजार का मिलता है, लेकिन सदाया हुआ बंदर जो है वो 15 से 20 हजार रुपए का मिलता है। शाबाश। तो तुमने ये कितने का लिया था? ये बच्चा जमूरा है। इसका इस तमाशे में या मदारी में मरकजी किरदार होता है। आमतौर पे मुहावरतन भी कहा जाता है कि ये बच्चा जमूरा का रोल प्ले कर रहा है। यस मैन, जो उस्ताद कहेगा, जो ये कहेगा वो उसकी हाँ में हाँ मिला। अरे यार मदारी की हाँ में मिला के बेचारे की ये हालत हो गई हुई है। थोड़ा सा अपनी अकल से काम लेता तो उससे तो बेहतर ही होता। अच्छा, मैं बता ये रहा हूं कि इसमें जो बकरी होती है, आमतौर पे हम तो जानते हैं लेकिन नई नस्ल नहीं जानती कि बकरी का करतब ये होता है कि वो एक पाए के ऊपर अपने चारों पाए इकट्ठी कर लेती है। हाँ, और वो इकट्ठे कर लेती है। और ये खास नस्ल की बकरी होती है, इसको कहते हैं सुमरी नस्ल। ये बलोचिस्तान से लेके आते हैं और इसका रेट 15 से 20 हजार रुपए तक का होता है। 15-20 हजार की बकरी, 15-20 हजार का बंदर को 15-20 हजार का कुत्ता भी होगा। वो इतने पैसों की कपड़े की दुकान डालो, पखे के नीचे बैठा करो आराम से। ये बगैर सदाई हुई आम बकरी है सुमरी, वो 15-20 हजार की है। जब वो उसको सदा लिया जाता है तो उसकी कीमत 30-35 हजार तक चली जाती है। भाई जी आप इधर आ जाए, मैं उधर बैठ जाता हूँ। इतने बड़ी मुश्किल ना बैठे हैं उठे जाके तो फिर प्रोड्यूसर से कहो फटाफट चाय मंगाए, साथ केक जरूर मंगाना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ये। तो एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि मतलब जो मानने में नहीं आती वो ये है कि बंदर सधाने में 4-5 महीने लग जाते हैं, जबकि बकरी सिर्फ 2 महीने में ये करतब सीख जाती है। अच्छा, 2 महीने में? अरे बकरी जो है ना जी, जो बकरा होता है नस्ल छतरानी बकरा, ये बड़ा सियाना जानवर होता अच्छा, इनकी कास्ट में सबसे महंगा अदाकार पता है कौन होता है? कौन? है। तुम्हारा दोस्त चाचा रीच। आमतौर पे ये ब्लैक बियर होता है या ब्राउन बियर होता है। ब्राउन बियर ज्यादा होता है और अच्छा। उसकी कीमत सधाने के बाद 1.25 लाख से 1.5 लाख तक चली जाती है। 1.5 लाख से 1.5 लाख। वाह वाह वाह। जमूरे वाह वाह। ए बाऊ नु सलाम करते 1000 दा नोट फाड़। लो भाई जी, इनके साथ गुफ्तगू करके इनको चाय चाय पिला देना। मेरा तो डॉक्टर सफदर महमूद साहब के साथ है। यार डॉक्टर सही, इधर बैठो। अल्लाह वाले तेरे के 1000 का नोट की है, बात 1000 का अच्छी। नोट दे देगा गरीबां नु, तेन दुआवां देणगे। ये जितनी प्रॉपर्टी जुनैद ने आपकी सुनाई है, बल्कि जाते हुए मुझे 1000 दे के जाना। रेट तुम्हारा 1.25 लाख का है, मेरा स्कूटर 8000 का है। अब भाई रिच 1.25 लाख दा ते एवें नहीं रोवे स्कूटर नु, तेरा स्कूटर इंज कर सकदा है? और जाहिल आदमी रेट ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है। ओए बल्ले बल्ले बाऊजी बटाना जे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
اچھا بھائی جان حسب ڈاک کی طرف آتے ہیں. پہلا ایک واٹس ایپ میسج ہے, سنو ذرا. سنائیے جی. السلام علیکم, میں تنویر بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. حسبیال ٹیم سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, آپ لوگ لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنا بالکل بھول گئے. ابھی بھی بہت سے چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ ہے. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس پہ بھی ایک پروگرام کریں جو ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. آپ کی بہت بہت مہربانی, شکریہ. نہیں بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. یہ غور کرو نا, غصے سے ان کا منہ باقاعدہ 500 واٹ کا ہوا ہے. پریشان ہے لوگ یار, کیا کریں. ان کا غصہ بجا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ عرض کر دیں کہ جتنا لوڈ شیڈنگ کا ذکر ہم نے حسب حال میں کیا ہے, ہمارا تو گلا خشک ہو گیا. اور چھوٹے شہروں کا خاص طور پہ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے اعداد و شمار کے ساتھ یہ بات ثابت کی تھی کہ چھوٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, صرف لوگ یو پی ایس اور جنریٹر کے استعمال کے عادی ہو گئے. ہاں جی ہاں بالکل بالکل. بلکہ مجھے یاد ہے کہ چھوٹے شہروں کا ہم نے بڑا ذکر کیا تھا. یہ پاج نے تو مجھے غصے میں کہہ رہا تھا کہ یار چند دن میں چھوٹے شہروں میں کلفیاں نہ لگا لوں تاکہ ریسرچ بھی ہو جائے. اچھا جی, خط کیا ہے؟ ہاں جی, خط ہے لاہور کینٹ سے. انیس احمد لکھتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب اور عزیزی صاحب, آپ کو ایک پہیلی بھیج رہا ہوں جس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا ہے. آپ دونوں میں سے جو بوجھ لے گا اس کو 1000 روپیہ انعام دوں گا, لیکن لاہور میں اورنج ٹرین مکمل ہونے کے بعد. اگلا کیا کھاتا ہے؟ اور اس نے سدھا انکار ہی کر دیا ہے. نہیں اللہ نہ کرے, بننی تو ہے نا یار. انشاءاللہ بنے گی, انشاءاللہ بنے گی. ابھی تو کیس چل رہے ہیں یار. اب بندہ 1000 روپے پیچھے اتنے دیر تک انتظار کرے. یہ الگ بات ہے کہ جب بنے گی اس وقت 1000 روپے آج کے 10 روپے کے برابر رہ جائے گا. یہی نہ ہو. اچھا چلے پہیلی تو سن لیں. پہیلی ہے, وہ کیا ہے جو آپ کا ہے مگر آپ کی بجائے اسے دوسرے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ میرا موبائل. نہیں, میرا خیال ہے اس کا صحیح جواب آپ بتائیں پہلے. نہیں پتا, نہیں پتا, نہیں پتا, نہیں پتا. نام. اوئے زبردست. بالکل صحیح. یہ تیرے صدقے جاؤں. یہ بھائی جی 1000 تو روپیہ ہے, پہلے ہی دینے اورنج ٹرین یہ روڈی کڑی ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں. یہ کافی سارے لوگ پہیلیاں اور اس طرح کے چٹکلے اور اپنا سوالات بھیجتے ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ 70% کلیئر لکھے ہی نہیں ہوتے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے ویور سے کہ یہ پہیلی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز بھیجے تو اس کو دھیان سے صحیح طور پہ لکھ کے بھیجا کرے تاکہ وہ آپ کی سنائی جا سکے یا پوچھی جا سکے. اچھا یہ واٹس ایپ میسج سنو یار. السلام علیکم حسبیال ٹیم. میرا سوال عزیزی سر سے ہے کہ آپ ہمیشہ مزاحیہ ہی شاعری کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو سنجیدہ شاعری کی سمجھ نہیں آتی؟ یہ بتائیں. بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنجیدہ شاعری بھی ضرور ہمیں سنانی چاہیے, مگر یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی ادھر عید کارڈ لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ بیٹی سناتے ہیں سنجیدہ شاعری. اور رہ گئی بات ایجی انکل کی, تو ایجی بھی سنجیدہ شاعری کرتا ہے. ایجی کا تو اپنے شعر ہیں بڑے بڑے سنجیدہ. یہ اس سے زیادہ سنجیدہ شعر اور میں کیا کہوں. نہ جانے گزرے گی کیا دل پہ کیسی وہ گھڑی ہوگی, سنا ہے درمیاں حوروں کے بیگم بھی کھڑی ہوگی. یار خدا کے لیے نہ ہنسا کرو, سنجیدہ بھی رہنے دیا. بیٹے یہ ہنستے ہیں تو میرا شعر میایا ہو جاتا ہے, ورنہ میں سنجیدگی سے شعر کہتا ہوں. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید آج میرے ساتھ عجیب ہوئی ہے. ایک معزز سے آدمی, انہوں نے میری طرف دیکھا ہے تو میں نے سمجھا شاید پہچان رہے ہیں کہ یہ وہی دانشور ہے جو دنیا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اوئے ادھر آؤ نا جی صاحب. پہلے اوئے کہا ہے پھر صاحب بھی کہا ہے. سچی جو بات ہے, میں نے کسی کی برائی نہیں کرنی. میں ڈر گیا, میں نے کہا یار اوئے اور صاحب جو مکس ہوا ہے بات کو ٹھیک نہیں لگ رہی. تیور بھی ان کے تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے. میں پاس گیا ہوں, میں نے کہا جی سر فرمائے حضور. کہتے ہیں بات کرتے ہو تو پوری کیا کرو. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے جناب. کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تم نے یہ کہا تھا جی کہ ٹیلی فون کان کے ساتھ لگا کے سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون کان کے ساتھ لگا کے تو جا رہے ہوتے ہیں, سڑک کے اوپر فون سن رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میری بات سنا, منہ تمہارا باقاعدہ 2 کلو دہی رڑکنے والا ہے. جگت کر دی. میں نے وہ بھی نہیں غصہ کیا, میں نے کہا چلو یہ چیز ہے تو میں کیوں غصہ کروں.
हालांकि उन्होंने 2 किलो कम बताया वैसे। बात सुननी है या फिर मैं रोक दूं? नहीं 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 यार, प्लीज। तुम यार दही तोलना शुरू हो जाते हो, मेरी गुफ्तगू तोलो यार। कहने लगे कि ये जो मोबाइल फोन है इसका मतलब ही ये होता है मोबाइल का कि इसको साथ लेके बंदा फिरे। तो अगर रास्ते में फोन आ गया तो घर जाके सुन के फिर वापस आए। तो मैंने कहा जनाब मसला ये है कि मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की थी कि फोन सुनते हुए सड़क क्रॉस ना करें। अगर टेलीफोन की बेल हो गई है तो चलते हुए भी चलो रुक जाए। अगर सीधा भी फुटपाथ पे जा रहे हैं तो फोन सुनते हुए बंदा किसी माई में बज जाए, बाद जो माई को बादुआ मान लो। तो अगर फोन आ गया तो साइड पे हो गए, सुन के तो फिर चल पड़े जे। मोबाइल का ये मकसद तो नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हैं और सिर्फ फोन सुन ही नहीं रहे, आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं। अब देखो ना जरा ऐसे ऐसे बेवकूफ भी देखे हैं मैंने। तो मसला ये है कि मैंने कहा है और ये असल में मैं कहना चाहता था। तो कहते हैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी बात करनी थी कि एक साइड पे हो गए फोन सुन के फिर टुर पड़े, आगे से ना इस तरह की बात करना। मैंने कहा अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई नून लीग का कोई लीडर शीडर ना हो। जब पूछा तो पता चला कि भाव मुनीर मरूम नहीं था जो बड़ा मशहूर पंड थे, जी जी, बड़े कमाल आर्टिस्ट हुए हैं, उनका बड़ा बेटा था। उन्होंने फिर तुम्हें ठीक जुगते लगाई हैं। सही 2 किलो दही खिलाया आपको। इस तरह की अगर जंग शुरू हो जाए तो बीच में फौरन खबर पढ़ देते हैं। अच्छा जी सुने, कहा जाता है शौक का कोई मोल नहीं है। नई दिल्ली का गौतम नामी शख्स अब तक 25,000 माचिस की डिब्बियां जमा कर चुका है। उसका कहना है कि ये शौक उसे बचपन से ही था। गौतम जी माशे इकट्ठी कर रहे हैं जनाब। अब तो घरों में भी चूल्हा जलाने के लिए वो पिस्तौल वाला लेटर आ गया हुआ है। जनाबे आली मौसम बड़ा अजीब सा हो गया हुआ है, माशे बेच छोड़े। ये किस काम में पड़े हुए हैं? 2-2 रुपये भी रोज आप गले में अगर डालते तो आज 50,000 रुपया होना था। ये तो मेरी माशे और वो भी ऊपर मसाला लगा हुआ, बरूद ही है ना घर पड़ा हुआ। इसको निकाल के बाहर सुटे जनाब। अल्लाह ना करे किसी दिन हमें मौसम की शिद्दत की वजह से अगर आग लग गई तो फिर जो लोगों को बताते फिर इन्हें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सड़ गया। 25,000 माचिस से एक तीली की मोहताज। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हॉबीज है, तुम्हें क्या तकलीफ है? यार हॉबी भी कोई चज की हो ना। इस तरह तो कई बंदों ने हॉबी बनाई हुई है, मैं रोज अपनी बेगम से बड़ी बेइज्जती कराता हूं। ये क्या हॉबी है भाई? तुम बताओ। खबर पढ़ दो जल्दी से। सुने, न्यूयॉर्क में खुद को चोरों से बचाने वाला मोबाइल फोन आने ही वाला है। हाँ, इतना सियाना फोन। हाँ जी, यानी फोन चोरों से खुद को बचा लिया करेगा। बिल्कुल। बल्ले बल्ले बल्ले, इसका मतलब है चोर अगर आएगा तो फोन जेब में से निकल के फटाफट गड्डी के पीछे लुक जाएगा। और अगर उधर को चोर गया तो वो दौड़ लगा देगा आगे। और अगर फिर भी बेचारा मोबाइल पकड़ा गया तो उसने चोर के हाथ पे इतनी जोर से दंदी बंधनी है ना कि उधर मिस कॉल का निशान पड़ जाए। ये तो फिर बड़ा खतरनाक है ये मोबाइल। ये इतना समझदार मोबाइल तो फिर कार जाके तो बंदे की शिकायतें भी लगा दिया करेगा। हाँ, सीधा शुरू हो जाएगा कि बाजी ये जेड़े भैन ने ना मेरे ये बड़ियां बड़ियां अजीब काला कर दे। इधरों भैन बोलते ने तो उधरों पता नहीं कौन टुट मरनी बोलती। बाजी मैनू ना कोई अलामा देना, भैन मेरे मोढे ते बंदूक रख के चलान दे। अरे उसने इतनी बात करनी है तो बाजी ने अलमारी में से बंदूक निकाल लेना। अरे मैंने पक्का पता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। हाँ जी, 2-3 वारी ਤੁਹਾਡੀ आवाज नाल मेरी बैटरी भी सड़ी है, तुझे पता ही। वैसे जो इतना सियाना मोबाइल है ये अगर किसी दिन थकिया हुआ होगा तो ये तो खुद कहीं है सराने थले लुक जाया करेगा। अजीज़े साहब, खबर पता नहीं कहीं की होती है और आप उसे कहीं और ही ले जाते हैं। यही दानिश्वरी है। और दानिश्वर तुम्हारा क्या ख्याल है? उसको इधर कनुए निकले होते हैं। अच्छा खबर सुने अगली। जापानी कंपनी ने ऐसा अनोखा रिपोर्ट तैयार कर लिया है जो ना सिर्फ मजाक से आशना है बल्कि लतीफे भी सुनाएगा। जी हाँ, सुबह के वक्त ये अलार्म ट्यून की बजाय लतीफा सुनाकर उठाया करेगा। इनका बेड़ा तर्जन जापानियों का। अल्लाह ना करे ये इस मुल्क में आ गया तो हम तीनों की तो छुट्टी हो जाएगी। ऊपर से भाजना है तो पहले ही हम पे तपा हुआ है। इसने तो चैनल वालों को कह देना जी कि जरूर तजर्बा करे।
हम तीनों की जगह पे इधर 3 मशीनें लगा लेनी है। वो तो लतीफे भी सुनाता है और मया भी पैदा करता है। अजीजी ये जापानी रिपोर्ट है, यहाँ जापानी जुबान की किसी को समझ नहीं आनी। अब भाई जी नवा तरीका निकल आया, ऊपर तर्जमा चला देते हैं। तुम दोनों तो चले जाओगे थिएटर करने के लिए, मैं अब नहर पे फिर के आन के बेचा करूंगा। बाकी बातें तो समझ आती हैं, लेकिन ये सुबह लतीफा सुना के उठाने वाली बात समझ से बाहर है, ये कैसे? ये पता नहीं क्या वजह है, शायद कुछ झूठी हो, अल्लाह करे। हमें तो जली सड़ी बात सुन के उठने की आदत है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने बीवी की टक्कर पे बनाया है कि बीवी सवेरे बीती करके उठाती है, इन्होंने सवेरे उठाने के लिए लतीफे भरे हैं इसमें ताकि खामद ज्यादा से ज्यादा ये खरीदे। पहली बुकिंग तो मेरे भाई ने करा दी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।